So very good afternoon, students, and we are here with the next part of our chapter which we were reading, which is the journey to the end of the earth, right? So in the last class we discussed about that there are very many places in this world which have been destroyed already by the human being. But there are only a very few places in the world which are still intact upon and which have not been disturbed by the human being, right? From here we have to study from page number 21. From the first line we'll have to continue with the chapter reading. But this is what we have discussed in the last class. In this particular chapter we have been told, the writer has told us that how things change and how difficult it has become only because of the human beings to live, to sustain in this beautiful world. Earlier this all land masses, all these continents, like I told you, here was North America, South America, right? Here is Australia, and here is in between the Asia and Africa, and on top of that is Europe. So all, like I told you about, all these were joined together earlier, which was known as a huge landmass known as the Pangea. Then slowly and gradually it got separated away and it got drifted apart. So at that time when the dinosaurs used to exist, at that time Antarctica was also happened to be a very hot place, right? But slowly time changed and it became one of the most frigid zones which has got no trees and certainly no houses, no water, and very less sunlight because it is situated right here at the very bottom of the earth. ठीक है? So ये जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं ईशानी दोषी, इनके स्कूल में इन्होंने अपने आप को एक चाइल्ड, एक स्टूडेंट कंसिडर किया है. वहां पर एक स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था जिसके तहत उनको एंटार्क्टिका जाने का मौका मिला और उन्हें एक्सप्लोर किया उन्होंने ये सारी चीजें. ठीक. सो वी आर स्टार्टिंग टू रीड. ओके, रेडी? So students on ice, the program I was working with on the Shokatski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with emprising educational opportunities, right? With which what happens? With which they are going to be helped with fostering a new understanding and respect for our planet. ठीक है? अर्थ के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और कुछ समझ में आएगा उन्हें. It's been in operation for 6 years now and headed by Canadian Geoff Green, right? Which Canadian? This name is important, you can note down. Let's see if I have some pieces of chalk. Okay. Let me see if I can get some pieces of chalk. Okay, here we are. Right? So, what was the name of the Canadian? So the name of the Canadian was Geoff Green, right? What was the name? Geoff, Geoff, Green. Whenever you come across a name, always note it down. These names are important, right? So here I told you, here somewhere
This is like South America. On top of there, this scattered Greenland and all apart. This is like North America, है ना? This is the part which we are talking about. This is our Antarctica, right? This is our Australia, and likewise here we are the India, and here it's XC, right? From the just like this is the bigger one, Russia, and all, right? So this is approximately the world map which we are talking about. So all these land masses earlier ठीक है? So all these land masses earlier used to be joined together. फिर ये सब अलग अलग हो गया और ये एक ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ जिसके राइटर थे हमारे जियोफ ग्रीन साहब, ठीक, जो कि एक कैनेडियन थे और वही उस मिशन को लीड कर रहे थे, ठीक है? तो हु गॉट रिटायर्ड ऑफ charting celebrities and retired rich, who got tired of carting celebrities and retired rich, ठीक है? सेलिब्रिटीज के साथ में जुड़े रहते थे, उनके मैनेजर वगैरह रहे होंगे तो काफी पैसा उन्होंने कमाया था और जब वो रिटायर हुए तो काफी रईस थे. क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे विद स्टूडेंट्स ऑफ आइस. ये स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम उनका ही था दरअसल. जियोफ ग्रीन साहब ने ये स्टूडेंट्स, ये जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो ये ऐसे ही बड़े लोग, स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो ऐसे ही बड़े लोग उसमें पैसा लगा के उसे घूमते हैं और बच्चों के लिए वो चीज बनाते हैं कि पैसे कौन लगाएगा, इन्वेस्ट कौन करेगा. जस्ट लाइक अवर बिल गेट्स, द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना? उन्होंने भी इंडिया में से बहुत सारे उनके प्रोग्राम छोटे छोटे स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, कि जिससे जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो ये प्रोग्राम उन्होंने जियोफ ग्रीन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था. He offered the future generation of policy makers a life-changing experience at an age where they are ready to absorb, learn and most importantly act. बहुत बहुत जरूरी बात है. जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस में होते हैं, तो एक टाइम पर हमारी जो एज होती है तो वो एब्जॉर्ब करने की एज बहुत अच्छी होती है. फिर धीमे धीमे हमारा जो वो एब्जॉर्प्शन पावर है वो कम होता रहता है. इसीलिए हमारा स्कूल हमें प्रॉपर एज में भेजा जाता है कि जिससे हम दुनिया का सारा नॉलेज अपने पास गेन कर सके, सीख सके, आगे बढ़ सके. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फालतू की चीजें सीख करके अपनी मेमोरी कार्ड को ब्लॉक कर लीजिए, सारी इंटरनल मेमोरी, और या फिर प्रॉपरली चीजें सीखिए, राइट? So the reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not to be affected by it. ठीक है? वहां तक जाना कोई आसान बात नहीं है, एकदम कोने में, एंड में. It takes hell of a time and hell of the money. It is easy to the blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. यहां से देख करके बिल्कुल सही बात है. हम जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं ना, ये ऐसे ऐसे लाइंस जो होती हैं, हाँ, उन्हें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. चलिए थोड़ा पता करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा कि क्या होता है. पढ़ा होगा आई एम श्योर आपने इन क्लास 7th 8th. इट इज वेरी मच देयर इन द ज्योग्राफी सिलेबस. सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी एक जगह का प्रॉपर लोकेशन बताते हैं. आर्मी वाले में आपने देखोगे ना, 34/25 डिग्रीज नॉर्थ, 22 डिग्रीज by 32 degrees longitude, just like that.
But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. जब आप उस जगह पर जहां पर बर्फ पिघली हुई होनी चाहिए वहां पर तो बर्फ आप देख ही रहे हैं, जिस जगह बर्फ जमी हुई होनी चाहिए वहां पर आप उस बर्फ को कितना पिघलता हुआ देख रहे हैं, तब आपको एहसास होता है कि कितना पोल्यूशन हमने फैला रखा है, कितनी तबाही हमने फैला रखी है और कितनी ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम जिम्मेदार हैं। कहा जाता जरूर है, जिस समय कहा जाता है तो उस समय हमें एहसास हो जाता है, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर, यहाँ पे हर एंटार्क्टिका को ही कहा गया है, एक एज अ लेडी उन्हें ट्रीट किया गया है। बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैक ऑफ द लाइफ, नो प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वाई फूड चेन को चलने के लिए सभी लोगों का होना उसमें बहुत आवश्यक है। Take the microscopic phytoplankton. Phytoplankton is a type of an algae. मैं सब चीजें आप लोगों को बता देता हूं, फिर आप लोग ढूंढते नहीं हो सकते। This is very bad. Microscopic phytoplanktons are those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. वही एक ऐसी एल्गी, काई, छोटी जंगली घास कह लीजिए, चाहे उसको काई कह लीजिए, एक तरीके की समुद्री सतह पे फैले हुए पत्ते कह लीजिए, जो कुछ है वो वही है जो कि पूरी की पूरी फूड चेन को चलाने में मदद करता है। एंड इट सस्टेन्स द एंटायर साउथ ईस्टर्न ओशन फूड चेन। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in their wondrous and most important of processes called the photosynthesis. ठीक है, photosynthesis तो आप जानते ही हैं। All the green plants, they need air, water and sunlight to make their own food with the help of taking up the carbon dioxide and with the help of releasing ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट। सो वो ग्रास, वो एल्गी, अब बर्फ में अगर आप देखिए तो देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें जो जहां से मिलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना प्लांट खाना बनाते हैं और उसी की वजह से जो फूड चेन वहां की है वो चल पाती है। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of the phytoplankton. Scientists ने already चेतावनी तो खैर कब की दे दी है, लेकिन बार बार वो उस चीज को वार्न करते रहते हैं और अलर्ट करते रहते हैं कि भाई अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया so it is going to affect the life of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle also. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of small things and big things will fall into place. Metaphor, poetry में मैंने सिखाया था आप लोगों को। मेटाफोर एक ऐसी चीज की जो हम छोटी किसी चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस बताने के लिए उसे प्रेजेंट किया जाता है। वही वो कह रहे हैं कि जब हम छोटे वालों का ख्याल रखेंगे, छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो छोटी चीजें बड़ी चीजों का ख्याल रखेंगी। यहाँ पर उनका तात्पर्य वो एल्गी, वो प्लांट्स, वो सी एनिमल्स से हो रहा है। ठीक है, हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं का ध्यान रखेंगे, वो उनका ध्यान रखेंगे तो वो उनका ध्यान रखेंगे। हम लोग काउस को, कैटल को घास वगैरह दे देंगे तो वो हमें मिल्क देगी इन रिटर्न में। इट इज ऑल लाइक इंटरकनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉक ऑन द ओशन, समुद्र के ऊपर चलना। कैसे? Yeah, it's pretty simple. When it's like -26 degrees,
जब इतना इतना माइनस टेम्परेचर है, माइनस 1000 and thousands, hundreds of degrees is there, so the entire ocean also freezes up. पूरा समुद्र जो है वो समुद्र भी जम जाता है। तो जब वो जम जाता है तो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स लोग, हम और आप नहीं, एक्सपर्ट्स लोग वॉक कर सकते हैं। एन एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. ये देखिए आ गया latitude longitude 65.55 degrees south. The Shokoloski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. ठीक है, शोकलोस्की इनका वो शिप था जहाज जिससे ये लोग जा रहे थे। वहां से ये लोग एक मोटे से सफेद रंग की फैली हुई बर्फ की चट्टान को पार तो कर गए थे, लेकिन अभी तक इनके और एक आइलैंड था जिसका नाम टैडपोल आइलैंड था। टैडपोल्स क्या होता है? फ्रॉग्स के छोटे वाले बच्चे, फ्रॉग्स के एग्स, फिर टैडपोल्स, उनको टैडपोल्स कहा जाता है ना। तो आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन टू एंटार्क्टिका, तो उसे टैडपोल आइलैंड कहा जाता है। तो उनका शिप यहाँ से और एंटार्क्टिका तक पहुंचने में अभी भी थोड़ी दूर टैडपोल आइलैंड की दूरी थी। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे कुछ भी करके। तो उनके जहाज के जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम शिप को घुमा लेंगे और यहां से वापस चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम सब के सब यहीं के यहीं मर जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग शिप घुमाते, हम सब लोगों को कहा गया गैंग प्लैंक। व्हाट इज अ गैंग प्लैंक? A gangplank is a gangway, है ना, इतना बड़ा लकड़ी का पटरे का बना हुआ रहता है जिसको गैंगवे कहा जाता है, जिसमें बीच बीच में इस तरीके से रस्सी लगी रहती है जो कि शिप से उतरने या चढ़ने के लिए काम आता है। ठीक है, ये शिप है आपका यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर जमीन है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पटरा, ये छोटा सा ब्रिज, ये छोटा सा बोर्ड होता है, उसको गैंगवे कहा जाता है। प्लैंक माने लकड़ी का पट्टा, गैंग प्लैंक माने ये वाला गैंग वे की बात वो कर रही है। उसका प्रॉपर नेम गैंगवे है, लेकिन उन्होंने उसे गैंग प्लैंक कह दिया है। इससे पहले कि हमारा जहाज घूम पाता, हम सब लोगों को कहा गया कि गैंग प्लैंक पे चढ़ करके आप लोग जाओ और उस समुद्र के ऊपर जल्दी से चल करके आओ, वॉक ऑन द ओशन। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, 52 तो थे वो लोग, हम 52 के 52 निटेड आउट इन द गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, चश्मा वश्मा पूरा पहन करके, लॉन्ग शूज, बूट्स, हाई व्हाट यू कॉल द फर कोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, पूरा सब कुछ, सारे ग्लेयर, स्पेक्स, सब कुछ लेकर के, वॉकिंग स्टिक्स लेकर के, क्योंकि बिना उसके तो आदमी मर ही जाएगा वहां पर। इट इज सो डैम कोल्ड। तो ये सब कुछ उन्होंने पहन रखा था और ये सब पहन करके वो लोग उस बर्फ पर उतर गए। एंड वी वर वॉकिंग ऑन द स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। और एकदम सफेद दूर दूर तक फैली हुई बर्फ की, ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहां से वहां तक मिल्क उड़ेल करके रख दिया हो और उस पे हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम दूध की तरह सफेद, यहां से वहां तक पूरा फैला हुआ था। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। अंडरनीथ आवर फीट वो द मीटर थिक आइस। 1 मीटर, तकरीबन इतना बड़ा होता है कपड़ा, हम लोग 1 मीटर से खरीदते हैं, तो 1 मीटर के बराबर इतनी मोटी बर्फ जमी हुई थी। उसके नीचे अथाह पानी था, एंडलेस वाटर वॉज देयर। ओशन की गहराई आप जानते ही हैं, लाइक इट्स इनफाइनाइट, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबमरीन में एक सोनार रेडिएशन लगा होता है जिसकी साउंड वेव से वो ओशन की गहराई नापी जा सकती है, क्योंकि जहां तक उसकी बेस होती है वहां से लड़ करके वो सोनार वेव वापस आती है। बट जनरली हम उसे पता नहीं कर सकते, वो सिर्फ आर्मी वालों के पास होता है। तो ये लोग जिस बर्फ पे खड़े थे उसके ठीक नीचे ढेर सारा पानी था। एंड
लिविंग, उसके नीचे जीव जंतु थे, जान थी, ब्रीदिंग, कोई सांस ले रहा था, सॉल्ट वाटर, उस नमकीन पानी के अंदर। कौन? मछलियां हो सकती हैं, क्रैब्स हो सकते हैं, जेलीफिश हो सकती है, ऑल द मरीन लाइफ अंडरनीथ दैट। तो इतनी मोटी है, जब 1 मीटर की मोटी बर्फ होती है और फिर उसके बाद धीमे 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 जब टेम्परेचर नॉर्मल 0 डिग्री पहुंच जाता है, अब देखिए जहां पर ये लोग ऊपर थे तो वहां पर -32, -5, -50, -52 जो भी टेम्परेचर रहा हो, पहाड़ के ऊपर तो बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे ये बर्फ पे जिस पे इन लोग खड़े थे वहां पे थोड़ा कम होगा, -26 होगा, और उससे नीचे गहराई में जैसे जैसे वो पूरी 1 मीटर की बर्फ में नीचे जाते जाते टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो जहां पर 0 डिग्री होगा, जहां पर बर्फ जमती है, उससे जैसे ही 0 डिग्री से प्लस की तरफ टेम्परेचर पहुंचेगा, वहां पर पानी मिल जाएगा। वहीं पर सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं। Underneath our feet was a thick meter ice and it was living, breathing salt water. In the periphery, crab eater seals were stretching and sunning themselves on the ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फोटोज दिखाई कि किस तरीके से ये लोग उतरे थे, और जैसे डॉगी किसी ठंडी शाम में, किसी ठंडी दोपहर में, ठंड से भरी हुई दोपहर में बैठ करके लेट करके गर्मी धूप सेकते रहते, उसी तरह ये क्रैब ईटिंग सील्स, क्रैब केकड़े खाने वाले सील्स, आप जानते हैं ना, ये जो बनी हुई है एनिमल, दे कैन नॉट फ्लाई, दे कैन स्विम, है ना, कैट्स की तरह लगते हैं, पीछे उनकी फिश की तरह टेल होती है और आगे से उनका मुंह बिल्ली जैसा होता है, उनकी मूछें होती हैं, और दे लव ईटिंग फिश एंड सी एनिमल्स। तो वो सारे के सारे वहां बैठ करके, ढेर सारे सील इन लोगों ने देखे कि वहां बैठ के सनबाथ ले रहे थे। एंड इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, एंड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance and play on our planet, and how would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be so many years ago? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Who's to say? कौन बताए, कौन कहे? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. But what a difference! कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जानते हैं आप कि एक दिन में क्या फर्क पड़ सकता है, एक दिन क्या डिफरेंस किसी की भी जिंदगी में ले आ सकता है। तो यहीं पर उन्होंने उसे एंड कर दिया अपनी इस जर्नी को। आज भी उन्हें तिशानी जोशी जी को ये याद है कि जब वो गए थे तो कैसा लगा था उस जगह पर अपने फ्रेंड्स के साथ, टीनेजर फ्रेंड्स के साथ, जो कि आप ही लोगों की तरह दिन के अंदर दुनिया बदलने की चाह थी, और कैसे उन्होंने नेचर की ब्यूटी को एडमायर किया कि गॉड ने एक ही अर्थ पे किस तरीके से वो लाइफ भी, ये लाइफ भी, यहां भी वहां भी, सभी चीजों को प्रॉपरली संभाल करके, कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट? सो दिस वाज ऑल, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, एंड द क्वेश्चन आंसर्स यू शुड ऑलवेज फिनिश विद द एक्सरसाइजेस of the chapter. It is very important, right? Do not, I repeat, do not take it lightly. Please do finish all your exercises, and wherever you have a problem, you know where to go for, right?